recording. Good evening and welcome. I'm Shashidhar, your host, and I welcome you to the Spirituality and Healing Meet. And let me welcome the guests. So we have today Payal ji, who has joined for the second time and third time rather, and Neeta ji and Pooja ji. Meeta ji, right? Okay, good. Yes, so let us have the agenda once again. Who is going to share the agenda for today? आज का एजेंडा क्या है और क्या समझ में आया? थोड़ा सा लंबा बताएंगे. क्या समझते हैं आप इस आज के एजेंडा से? डिस्कशन क्या होगा? What is your views on that? So who would like to share? If you are on mute, you will have to unmute yourself. Yes. So I was asking, is it universal laws, LOSS, or universal laws, LAWS? Okay, this is LAWS, universal laws. Okay. So that is a very interesting start to the conversation. So what is a law? I would ask that. Okay, law and order सुना है हमने? Law and order सुना है? तो सोसाइटी के law and order होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स के कुछ laws होते हैं, by which the universe is operating. So that is what we are going to inquire and discuss, so that we know what are the laws which govern the universe. So if you know that, and since we are part of the universe, and in some beliefs or some studies we say that we are the universe, right? So if we know the laws which are governing the universe, अगर वो हमको सिद्धांत मालूम है जिनसे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और हम भी उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, तो उन लॉज को हमारे ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए. And how we can apply that in our life to make our life successful. That is what the discussion will be, right? So first of all, let us understand what is the universal. What do you mean by universal law? Okay, पहले उस पे discuss करते हैं. What is a law? What do you mean by a universal law? And then we will see how the universe came into existence. क्योंकि आज का हमारा पहला law क्या है जो हमने बोला था universal law में? Law of existence or law of being. So we will understand the theory part, and then we will see how we can apply that in our practical life. Life में कैसे apply होगा? Clear है ये? Everybody okay with me till now? Connecting? Yes. Yes. So let us have some open discussion now. What is a law? And we are talking not of the society law. We are talking of the universal law. So what is a law? Let me know that. What is your understanding? Yes. Meanwhile, welcome Parth. Namaskar, and welcome Gaurav. Can I speak? Yeah, sure. Just very Anybody can shortly. speak. Thank you. Yeah, but we will keep it short because we have a discussion Yes. on, right? Yeah. Yeah, Everybody it's needs very to short. say that. So let's have Yeah. the discussion. Yes, go ahead. Yeah. So anything changes in the universe except the laws. The laws remain constant. Okay, good. So your That's it. point of view is that laws are something which are constant. So they don't change. Yeah, Laws they are don't constant. change. Yes. Yeah. Okay, very Correct. good. The law is something which is constant. Okay. Anybody else who has some viewpoint on this? और कोई बोलना चाहेंगे? Everybody agrees with it? कोई ऐसा है जो disagree करता है? What is the question? We are talking of universal laws, Gaurav, Okay. and we are talking of what is a universal law. Rather, we are first starting with what is a law, LAW. Yeah. So what is a universal law? वो ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो सिद्धांत हमारे ऊपर कैसे लागू होते हैं हमारी लाइफ में, ताकि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी सकें और उसको सक्सेसफुल तरीके से लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें. ये है हमारा कोई. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, राइट? लाइफ में हम यही चाह रहे हैं कि अपने डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड गोल्स को हम अचीव करें, keeping in mind that we are in a state of love, peace and happiness. So that is what we want to achieve. So can this help? That is the whole question. That is the inquiry we are into, right? Yes. तो अभी पाल जी ने बोला लॉ कुछ ऐसा है जो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा. तो इट इज लाइक ए, यू कैन से, लैम्प पोस्ट. गाइड करेगा आपको, लाइट दिखाएगा, ये मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा इसे, बट वो अपने आप चेंज नहीं होगा. सो दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ए लॉ. पर हमारी नॉर्मल लाइफ में हम क्या समझते हैं? ट्रैफिक लॉ होता है तो क्या करते हैं? कैसे तोड़ें? कोई भी रूल होता है तो उसको कैसे तोड़ें? तो सोसाइटी लॉस और यूनिवर्सल लॉस में एक अगर फर्क है तो क्या फर्क है?
सोसाइटी लॉस को तोड़ के आप बच सकते हैं, बच भी सकते हैं शायद, हाँ चांसेस हैं, ifs and buts हैं, but there is a chance. We always look forward to, if there is a rule, how to bypass that rule. If there is a rule, what is the exception to the rule? हमारा दिमाग इसी तरीके से चलता है, but this happens only in a society law. Can you fool the universe? तो यूनिवर्सल लॉस में हम कांस्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि वो उसको फॉलो कर लो तो अच्छा है, नहीं फॉलो करोगे you will break your bones. That means you will ruin your life. You will break your head against the wall. Like say, what is a simple law? कोई भी एक यूनिवर्सल लॉ पकड़िए जो सबसे आसान है समझने में. जो बोगे वही काटोगे. वो तो टेक्निकल हो गया बहुत ज्यादा. मैं तो अच्छा. नॉर्मल वाला बोल रहा हूँ जो हम रोज देखते हैं. Law of gravity. लॉ ऑफ ग्रेविटी. किसने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटी? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. सिंपल है ना. न्यूटन ने भी सोचा, एप्पल गिरा, नीचे गिरा, लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाल दिया, एप्पल खा चुपचाप, हम भी बच जाते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट. एनीवे, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी समथिंग व्हिच इज ए कांस्टेंट, वी ऑल एग्री लॉ ऑफ ग्रेविटी इज ए कांस्टेंट, तो इट इज अ लॉ. और रात के 12 बजे भी उठोगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी रहेगा. हाँ, चेक करना है, कर सकते हैं वैसे, बट मोस्ट लाइकली यू वोंट फ्लाई अप इन द स्काई, यू विल फॉल डाउन. अगर बालकनी से कूदोगे रात के 12 बजे तब भी लॉ ऑफ ग्रेविटी चलेगा, है ना. तो लॉ इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज वर्क. कभी उसका ऑफ डे नहीं होता, कभी कोई चीट डे नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होता, कोई इंटरवल नहीं है. दैट इज अ लॉ. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ यूनिवर्सल लॉ, you better understand that it works 24 hours a day, and it has been working for thousands and thousands of years, and it is going to work for another thousands and thousands of years. You are nothing in front of that law. Better follow it. Message clear? Correct? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा है ये. तो हम उन लॉस की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक लॉस की बात नहीं कर रहे. 500 रुपए दिए, निकल लिए, ट्रैफिक लाइट जंप करी, 500 रुपए दिए, कुछ खास नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा. यूनिवर्स में सारी कैलकुलेशंस परफेक्ट हैं, यूनिवर्स के सारे लॉस परफेक्ट हैं. आप कोई रूल तोड़ोगे, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप राजा हो या रंक, राइट. यू विल फेस द लॉस ऑफ द यूनिवर्स. सोसाइटी लॉस में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं. अभी बड़ी एक हॉट न्यूज चल रही है आज के 2-3 दिन से. हाँ, I will not say that, but everybody knows what is the headlines in the last 2 days. Okay, अब वो, that is a law, but that is a society law. There can be loopholes, there can be, and there is a big agitation going on the farmers' laws, right? धरने पे हैं कितने सालों से, महीनों से, जो भी है. Yeah. So the point is society laws and universal law. You need to understand. Society laws में there can be some loopholes you can find out, and you can get away with it also possibly, but this has nothing to do with the universal laws, which are going to happen anyway. If you do some karma and you get a jail for that and you think you have done with it, no. आपका लॉ ऑफ कर्मा अभी आप उसके बाद अप्लाई होना शुरू होगा या हो चुका होगा साथ में, वो भी उसका पार्ट है, but that is not the ultimate. Somebody can, we have seen in movies, we have seen in life also, somebody commits a crime and gets away with it. Do you think he has got away? आपको लगता है वो बच गया? या लॉ ऑफ कर्मा उसको पकड़ेगा कभी ना कभी? बिल्कुल पकड़ेगा. Correct? So that is what I'm trying to say when I say laws are something constant. So thank you Payal ji for giving us a very good one-liner. So laws constant हैं. It is like a lamp post. It will show you the light. It will guide you. You use the light and move your life forward. Great. You want to unsee the light and break your head against a wall. You're welcome. Laws को कोई फर्क नहीं पड़ता. नुकसान या फायदा आपको होगा. Create या destroy आप अपनी लाइफ को करेंगे. That is what we mean by the universal law. So let's have some sharings on this first. Then we will move on. So everybody clear what is a law and what is a universal law? ठीक है? तो हम universal law की बात करेंगे. Anybody who wants to share? Amit ji, any thoughts? Tony, Kavan, कोई बताना चाहेंगे? कुछ भी बोल सकते हैं. See, this is a discussion. I don't want it to be a monologue. पहला सेशन है, अभी मैं माइल्ड रखूंगा. And next time onwards it can be more ज्ञान. आज ज़्यादा ज्ञान नहीं है. थोड़ा डिस्कशन है. तो see, what is, how do you think? Is it really worth it? पहले तो ये पॉइंट है ना. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 1 घंटा लगा के और सीख रहे हो, कोई यूनिवर्सल लॉ फायदा है उसका?
अगर आपको लगता है फायदा है, तभी फायदा होगा जब आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, एंड दिस वर्क्स इन माय लाइफ एवरी डे वेदर आई एम अवेयर ऑफ इट और नॉट। मैं उसको मानूं या ना मानूं, मैं उसको जानूं या ना जानूं, ये मेरी लाइफ में चल रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली द सेम। At least we will find out what is it which is already going in our life. So that would be the first step, and then the correction, and then Absolutely. implementation, and then improvising. So that Very is good. going to be helpful for us. I mean, for me at least. Perfect. And that is what I say when you say the student cap is on. You put your student cap on. पहले लॉ को हम सीखेंगे, समझेंगे, और अगर नहीं आता है तो उसको इस तरीके से देखेंगे कि ये मेरी लाइफ में तो चल ही रहा है, इसके रिजल्ट्स तो मैं भुगत ही रहा हूँ. नाउ लेट मी यूज इट इन अ करेक्ट वे to get the desired results in my life. That is how we need to look at it. Correct? Okay, good. Anybody else? Anybody has a different point of view? कोई है? सब बेकार. यूनिवर्सल लॉ कुछ नहीं होता. हाँ? ये सब किताबें छापने वाली बातें हैं. Parth, you are on mute if you want to say something. हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे सोसाइटल लॉज है, हम लोग कंपेयर करते हैं लॉज को, तो सोसाइटल लॉज के अंदर फ्लॉज भी हो सकता है, इम्परफेक्शन हो सकती है, या फिर टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं. हर एक लॉ अपने अपने टाइम पे अप्लाई होता है, एंड उसमें सोसाइटी जैसे प्रोग्रेस करती है, चेंज करती है, उस हिसाब से हम उसको चेंज करते जाते हैं, मोल्ड करते जाते हैं, ऑल दैट. तो ये जो सोसाइटी लॉज है, ये काइंड ऑफ एक अगर यूनिवर्सल स्केल पे देखा जाए तो बहुत टेम्पररी चेंज होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं, चेंजेस उसमें होते जाते हैं, इंप्रूवमेंट के चांस. हम लोग अपना अभी लेजिस्लेशन है जो भी है, कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं उनको एक इम्प्रूव करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, है ना, और अकोमोडेट जो भी चीजें हो रही हैं. बट यूनिवर्सल लॉज जो है वो बिल्कुल जैसे कहा कि फिक्स है, परफेक्ट है अपने आप में, ठीक है, एंड वो लाइफ को अकोमोडेट करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है. और मतलब ये पूरे मतलब जितने टाइम तक यूनिवर्स, लेंथ ऑफ यूनिवर्स तक सेम रहते हैं और कांस्टेंट रहते हैं उसको, और उसी हिसाब से डिजाइन रखते हैं. Perfect understanding, Parth, and that is exactly what we have said. So absolutely in sync with what we discussed. Correct? Great, wonderful, good job, good understanding. Anybody else who wants to say something? And what Neeta ji said and what Payal ji said, absolutely in line. Okay? Yes. Anybody else who wants to share something? Gaurav, are you aligned with us? Yeah, I'm aligned with Siti. If I want to share, basically, sure, universal laws. One thing, what Payal is saying, that we are not aware of, what the universal laws are. We don't know, whether we are going in the right direction or wrong direction. That is very important, and that's how we can improve, right? Absolutely. So these are the, you can say, the guiding lights. These are the lamp posts, I would say. ये लाइट दिखा रहे हैं हमको. अब हम आंख बंद करके चलना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन लाइट दिखा रहे हैं. ये यूनिवर्सल लॉज अगर हम सीखेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे, हमारी लाइफ बहुत बढ़िया से स्मूथली जाएगी. दैट इज द प्रॉमिस. दैट इज द प्रॉमिस ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉज, राइट? एंड ये कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये सारे लॉज जो सिंप्लीफाई करके हम डिस्कस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं भगवत गीता में इसका रेफरेंस दिख जाएगा. अगर लॉ ऑफ कर्मा की बात करें, या लॉ ऑफ धर्म की बात करें, या कर्म की बात करें, ये सब भगवत गीता में बहुत बार बोला हुआ. वो समझना हर एक के इंटेलेक्ट लेवल पे डिपेंड करता है. तो हम उसको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे कि सिंपल सा लॉ क्या है, और उसको अपनी लाइफ में लाने से क्या फायदे होंगे और क्या रुकावटें हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अवर लाइफ. दैट इज व्हाट आई वुड से, बिकॉज ऑल दीज लॉज are something that we are going to share, is something which I have followed in my life practically. उसको पहले सीखा है, उसको समझा है, उसको अप्लाई किया है, और संजीव ने अभी ज्वाइन नहीं किया, but संजीव I have been going through the whole, we can see our whole life applying these laws and moving forward in our life. And same with Amit ji. Amit ji is a very profound I would say knower of these laws, and he has applied in his life in a big way, and that is why we are in a way, we're in a position where we can share this experience with all of you, right? Okay, good. तो पहला लॉ जो है, तो यूनिवर्सल लॉज क्लियर हो गए, राइट? तो पहला लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस और लॉ ऑफ बीइंग, ये हमने आज बात करी थी. तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस पे आते हैं. पूरा ब्रह्मांड जो बना है, यूनिवर्स,
अब मैं इसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बात नहीं करूँगा या बहुत डीप स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं दूंगा, थोड़ा सा ज्ञान है। हाँ, तो सब लोग थोड़े से अटेंटिव हो जाओ, थोड़ा सा एंथुसियाज्म बढ़ा लो एंड डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लो। एंड माय वॉइस इज ऑडिबल, आई सपोज, क्लियर है? यस, सो लेट अस लुक एट द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। तो लॉ क्या है हमने देख लिया, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स कहाँ से आया? मैं 5 मिनट में पहले ज्ञान दे देता हूँ, देन वी विल हैव अ डिस्कशन और यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? तो एवरीबॉडी शुड बी अलर्ट एंड लिसनिंग, तब मजा आएगा। तो एक मान लेते हैं गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सब लोग मानते हैं इस बात को, ठीक है? वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो गॉड इज इनविजिबल एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, एंड यूनिवर्स क्रिएट होने से पहले सिर्फ अनमैनिफेस्टेड एनर्जी था। इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो ऋग्वेदा में बोला हुआ। तो इमेजिन ए टाइम व्हेन देयर वाज नो यूनिवर्स, दैट मींस नथिंग, नो थिंग, नथिंग एग्जिस्टेड, यूनिवर्स था ही नहीं। इमेजिन करो सिचुएशन कैसी होगी, सिर्फ अनमैनिफेस्टेड एनर्जी था, नो डुअलिटी, नो टू, ओनली वन, वन अनमैनिफेस्टेड एनर्जी वाज एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि एग्जिस्टिंग टाइम एंड स्पेस में आता है, इसको बोलते हैं आई एम। गॉड इज आई एम, गॉड वाज द ओनली आई एम, गॉड एग्जिस्टेड। ये है लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस का बिगिनिंग, ओनली गॉड, नथिंग एल्स। देन गॉड बोर्ड, गॉड वांटेड टू सी द फेस, अपना फेस देखना चाह रहे हैं। मान लो अगर पूरे दुनिया में एक बार मान लो पूरे पृथ्वी पे आप ही हो और कोई है ही नहीं, तो आप अपने आप को एक्सपीरियंस कैसे करोगे? हाउ विल यू नो दैट यू आर एग्जिस्टिंग? करेक्ट? कैन यू नो योर एक्सपीरियंस? आप एक्सपीरियंस करोगे अपने आप को अगर आप ही आप हो? आर यू टॉल? यू डोंट नो। आर यू शॉर्ट? यू डोंट नो। आर यू फैट? यू डोंट नो। Right? Are you beautiful? You don't know. Are you ugly? You don't know. There is no comparison. You can't experience yourself if you are the only one, right or wrong? Absolutely correct. So God decided to play a game. God said, let me create. And so that energy, unmanifested energy, became a manifested energy. Science calls that Big Bang. Universe create ho gaya. And life started. So the whole creation of the universe is a manifestation of that unmanifested energy. Clear है? एक unmanifested energy God है, God ने universe को create किया, अपना ही एक creation है उसका, तो he is present in all the creation. ये आपके भगवत गीता के हर श्लोक में लिखा हुआ है, भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है का मतलब क्या है? भगवान ने यूनिवर्स को क्रिएट किया और वो कण कण में है। दिस इज द एग्जिस्टिंग यूनिवर्स, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, मैनिफेस्टेड एनर्जी है यूनिवर्स, और ये टाइम एंड स्पेस में है। यहाँ पे बहुत सारे गॉड ने लाइफ फॉर्म्स क्रिएट कर दिए एंड उसी का पार्ट है वो सब, है ना? वो इनफाइनाइट है, उसी इनफाइनाइट के पार्ट से हम लोग, परम आत्मा, आत्मा सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर की टच नहीं कर रहा। तो गॉड परम आत्मा है और हम आत्मा हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ दैट सुपर सोल, और हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो गॉड का बीइंग और हमारा बीइंग सेम है, वी आर डिवाइन, दैट वी हैव टॉक्ड इन मेनी एस्पेक्ट्स, हम डिवाइन हैं। तो बीइंग पार्ट में गॉड अपनी जगह पे अनमैनिफेस्टेड है, तो सिर्फ बीइंग है, लेकिन जब यूनिवर्स में आए तो बीइंग के साथ एक्शंस करने लग गए, डूइंग करने लग गए और हैविंग आने लग गया। जब डू करोगे कोई चीज तो हैव आएगा ना, रिजल्ट आएगा ना। क्लियर है ये? अगर कहीं पे डिस्टर्बेंस है तो नोट कर लीजिए अभी, वन सेकंड, आई एम थ्रू विद माय फ्लो, आई विल एक्सप्लेन द आंसर्स, राइट? बट अभी मैं सिर्फ फ्लो में थोड़ा सा मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो गॉड अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, जस्ट टू समराइज, गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, मैनिफेस्टेड एनर्जी, एंड नाउ यूनिवर्स इज अंडर द लॉस ऑफ टाइम एंड स्पेस। लॉस ऑफ टाइम एंड स्पेस गवर्न द यूनिवर्स, अंडरस्टैंड? अब इस यूनिवर्स में डिफरेंट आत्मा जो हैं वो बीइंग हैं, और वो डिफरेंट एक्शंस करते हैं, डूइंग, एंड देन दे एक्सपीरियंस डिफरेंट रिजल्ट्स व्हिच इज हैविंग।
and through this process God experiences the godness. Otherwise there is no way God can experience godness. Correct? God को experience हो ही नहीं सकता ना जहाँ पे वो है. तो God को experience करना है तो अवतार बन के आना पड़ेगा यहाँ. और then he will go through the drama. ये सब ड्रामे है ना. हाँ, तो लाइक कृष्ण अवतार वो आए, जेल में पैदा हुए, माँ बाप जेल में हैं, हाँ, आते ही राक्षस पीछे पड़ गए, बहुत सारे काम हुए, फिर कंस को मारा, फिर महाभारत का जो भी करना था उन्होंने काम किए, उन्होंने डूइंग में आ गए. डूइंग में किया तो हर डूइंग का एक रिजल्ट आया, हैविंग. लेकिन वो डूइंग और हैविंग में अपनी बीइंग को याद रख रहे थे, इसीलिए वो अवतार हैं. हम लोग आते हैं, डूइंग में घुस जाते हैं, बीइंग भूल जाते हैं, और डूइंग और हैविंग में जिंदगी बिता देते हैं, बीइंग भूल गए. एंड वी फॉरगेट दैट वी आर हु वी आर बीइंग इज डिवाइन, वी आर गॉड्स. भूल गए हम लोग. एमनीजिया, अमित जी, वी आर गॉड्स विद एमनीजिया. बीइंग पार्ट भूल गए अपना, डूइंग और हैविंग में घुस गए. कुछ कुछ कर रहे हैं और कुछ कुछ हो रहा है, एंड neither we are crying or we are laughing because we have become the कर्ता and the भोक्ता. जबकि भगवान कौन थे? अकर्ता अभोक्ता. न कर्ता है न भोक्ता है. This is the law of existence or the law of being. Actually में सिर्फ being है, लेकिन टाइम एंड स्पेस में, यूनिवर्स में being के साथ साथ हम doing कर रहे हैं. अभी भी मैं एक सेशन ले रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ. जब मैं कुछ कर रहा हूँ ना कोई एक्सपीरियंस मेरे को इसमें मिलेगा, अच्छा या बुरा. दिस इज द हैविंग. तो दैट कम्स अस यूनिवर्स में, टाइम एंड स्पेस में लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ बीइंग. और इसके 3 पार्ट्स हैं, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग. बीइंग विल डिसाइड व्हाट यू आर डूइंग एंड डूइंग विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ द हैविंग. क्लियर है? 3 लेवल्स याद रखिए. सबसे ऊपर बीइंग है, उसके बाद बीइंग के बाद डूइंग आता है, डूइंग के बाद हैविंग आता है. आप कुछ भी करिए, whatever you do, you will have a result, but that result is depending not only on the doing but also on the being. So if you are being divine, you will do an act of divine and the result will be divine. Yes or no? Yes. And if you are not being divine, then you will do something and the result will be something undivine, non-divine होगा. क्यों? क्योंकि being पे फर्क पड़ता है, आपके रिजल्ट डूइंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. अगर आप बीइंग में डिविनिटी है आपके, तो हैविंग में डिवाइन रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, मैजिक एंड मिरेकल्स क्रिएट होने ही हैं. लेकिन अगर आपके बीइंग में डेविल आ गया, तो कुछ भी आप काम करोगे उसका टिंज डेविल का ही रहेगा, उसमें टेस्ट. और हैविंग में रिजल्ट डेविलिश ही आएंगे. मेकिंग सेंस? दैट इज व्हाई वी से ह्यूमन बीइंग, instead of becoming human beings, we have become human doings. And then we are living like a human havings. And इसी को माया बोलते हैं. भगवद गीता में इसी को माया बोला है कि डूइंग और हैविंग में घुस गए हो, तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, तुम कर्ता हो ही नहीं, तुम अकर्ता हो, तुम अभोक्ता हो. You are the being. Recognize yourself who you are. और यही पूरी जर्नी है स्पिरिचुअलिटी. उसकी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी ये क्लियर है लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस और लॉ ऑफ बीइंग. तो मैंने थोड़ा सा ज्ञान था, छोटे से पैकेज में बना के डाला है. मेरा एजेंडा आज का इतना ही है और ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज फील फ्री टू आस्क. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लॉ ऑफ बीइंग और लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस. हाउ द यूनिवर्स एग्जिस्टेड, नंबर 1, एंड हाउ वी केम इनटू एग्जिस्टेंस. क्लियर है ये? देन वी से the law of being, doing and having. और इन तीनों में फोकस हमको बीइंग पे करना. करिए जो मर्जी करिए, डूइंग जो मर्जी करिए, हैविंग उसी के हिसाब से आएगा, लेकिन चेक योर बीइंग. दैट इज व्हाट द ज्ञान इज फॉर टुडे. नाउ लेट अस हैव सम शेयरिंग्स एंड डाउट्स एंड क्वेश्चंस. यस, मैं कुछ पूछना चाहूंगा. और बहुत कॉमन सी चीज है, लाइक बच्चे भी अगर होंगे ना तो वो भी यही पूछेंगे, राइट? कि लाइक आपने बोला ना कि गॉड अल्टीमेट बीइंग एंड ही क्रिएटेड द यूनिवर्स. ठीक है, तो एक क्वेश्चन सिंपली आता है कि गॉड को किसने क्रिएट किया?
ठीक है, एंड देन जनरली सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये आता है कि भाई उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो वो लाइक इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है? क्रिएशन पैराडॉक्स कह सकते हो। So, so there has you are saying, when did it all begin? Where did it all begin? Correct. So let me tell you. अब मैं छोटा सा एक इसका वैसे by the way everybody understood what he is trying to ask. सबको Yeah, क्लियर yeah. है? इसने पूछा what Partha said is a very intelligent question actually. हाँ, कि सब कुछ अगर क्रिएटर ने बनाया है तो क्रिएटर कहाँ से आया? राइट. तो ये शास्त्रों में बोला गया है, इनफैक्ट द ऋग्वेदा सेज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग स्टार्टेड विद अनमैनिफेस्टेड एनर्जी आई एम. तो गॉड को क्या बोलते हैं? आई एम इसीलिए बोलते हैं, राइट? एग्जिस्टेंस. नाउ लेट मी आस्क यू, एग्जिस्टेंस क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे तो टेल मी पार्थ, मे बी यू आर 25 years अराउंड 20s में हो, करेक्ट? तो अभी आप हो यहाँ पे, डू यू हैव एनी डाउट अबाउट इट? 10 years before you had a different body, right? बॉडी डिफरेंट थी, थॉट्स डिफरेंट थे, माइंड डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था, बट यू आर द सेम. आपको लगता है वो कोई और था, ये मैं अलग हूँ कोई? जब आप 1 साल के थे तभी बॉडी छोटी थी, चलना फिरना नहीं आता था, आपके थॉट्स अलग थे, वर्ड्स अलग थे, फीलिंग्स अलग थे, इमोशंस अलग थे, बट आर यू नॉट अवेयर कि मैं वही था? उस 5 साल के बच्चे में भी मैं ही था, अभी 25 साल के बच्चे में भी मैं ही हूँ. ये जो आई एम है, दिस इज एग्जिस्टेंस. ये है, ये मानना पड़ेगा हमको, ये रियलाइजेशन है कि मैं हूं. अब ये कोई थ्योरी नहीं है ना, मैं हूं, ये मालूम है. आई एम हियर, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं ये सेशन ले रहा हूं, आई एम, मुझे मालूम है मैं हूं. इसको आप झुठला नहीं सकते ना, राइट? एंड दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल. दिस आई जो है, ये सोल है. तो अगर सोल है तो परम सोल भी होगा. तो गॉड है, ये एग्जिस्टेंस की बात. बिलीफ, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा. रिलीजन में तो मतलब मान लो भगवान है, अगर मान नहीं लो, मैं हूं ना, मैं आत्मा हूं. तो आत्मा है तो परमात्मा भी होगी, वो भी यही बोलेगा मैं हूं. वो यहाँ नहीं आ रहा है, वो वहां है, जहां भी है. ओके, सो आई एम इज द प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट्स. सिंपल. तो आप बात भगवान को ढूंढ लो या खुद को ढूंढ लो, रियलाइजेशन में यही आएगा अल्टीमेटली, आई एम. ओके, आई डोंट नो वेदर आई आंसर्ड यू और नॉट, बट दिस इज द बेस्ट आंसर आई कुड थिंक ऑफ. सो डियर पार्थ, डिड आई आंसर यू? हाँ, मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत, बट हाँ ऑब्वियसली ये ऐसी चीज है कि मतलब वही वाली चीज है कि इन्फिनिटी के बारे में उसको सोचना, या हर किसी का एक ही पॉइंट पे, आप एक ही कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं हर किसी को, अगर बोला जाए तो वही वाली बात है. तो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, और जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये इग्नोरेंस से आ रहे हैं. अगर आप ज्ञान योग, हाई फंडा ज्ञान योग पकड़ोगे, तो मैं अभी यहाँ बताना नहीं चाह रहा, वो वेदांता में आप सीखोगे. अगर आप वेदांता में आप हो, पार्थ, यू हैव अटेंडेड दैट, यू ऑलरेडी नो दैट आंसर. अपने नोट्स चेक करो, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट आंसर. ओके, नाउ जस्ट टू टेल यू इन one or two lines what I'm trying to say is that एक पंच लाइन है, पंच लाइन सुनाता हूँ, उसमें अगर आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. अज्ञानता को प्रस्थापित मत करिए, ये शास्त्रों में लिखा है. अज्ञानता को प्रस्थापित मत करिए, अज्ञान को काटिए. इग्नोरेंस को एस्टैब्लिश नहीं करना है, इग्नोरेंस को हटाना है विद ज्ञान. So don't ask me, like for example, I tell you, but do you know French? So since when do you don't know French? Since I was born. तो पिछले जन्म में मालूम था? Cannot say. उसके पिछले जन्म में मालूम था फ्रेंच? Still So not you sure. see, there is no point of asking ये कब से नहीं मालूम है. अगर नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है. Understand? Ignorance को establish नहीं कर सकते.
तो अज्ञानता को प्रस्थापित मत करिए, अज्ञानता को काटिए। फ्रेंच सीखनी है, फ्रेंच सीखो, 6 महीने में सीख जाओगे। अंडरस्टैंड? इग्नोरेंस को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए। इग्नोरेंस कब से है मत पूछो, उसका वो सवाल ही बेतुका है। If you don't know French, you don't know French. Since when? That question doesn't arise. So when did God begin? Doesn't arise. That is ignorance. God is always there. You are not aware of it. So don't try to establish ignorance. Cut the ignorance. So शास्त्रों की एक लाइन याद आ गई मेरे को, इसलिए मैंने बताया। अज्ञानता को प्रस्थापित नहीं करना, अज्ञानता को काटना है ज्ञान से। किसी को ज्ञान योग बोलते। ओके, आई हैव सेड दिस, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। अमित जी याद है ना, मैंने वेदांता सेशन में ये बताया था। हाँ, तो चेक योर नोट्स। पार्ट फर्दर डिटेल्स मैं नहीं बता सकता, वो फिर सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपके जवाब के लिए काफी है। ओके, एनीबडी एल्स? I hope your curiosity is handled, right? Good. Yes, anybody else? So don't ask me so many tough questions, Parth. ये बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ये वेदांता क्लास में आना, रिकैप कराता हूँ मैं। कितने लोग वेदांता क्लास के रिकैप के लिए रेडी हैं, बताओ मेरे को। हाँ, तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। मैं रिकैप की बात कर रहा हूँ, आपको नए प्रोग्राम में आना होगा। ये लोग मेरा वेदांता प्रोग्राम कर चुके हैं, तो एक रिकैप सेशन रख लेते हैं। ये सब सवाल वहां पूछना। पार्थ, वेरी गुड क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट हियर। मैंने आपने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया वैसे, बट इसके आगे मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो वेदांता ज्ञान शुरू हो जाएगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तो आई विल हैव टू स्टॉप हियर, राइट? तो एक रिकैप सेशन अमित जी प्लान कर लेते हैं हम लोग, एंड वी विल हैव अ सेशन ऑन वेदांता। वी यूज्ड टू हैव दैट ऑन अ सैटरडे, सो एनी सैटरडे वी कैन do that, and if we have interested candidates, Neeta ji ne haath uthaya tha, so if we have interested candidates we can definitely start a new batch, right? And all of you can come as a guest there, those who have any questions. If we can join for recap and see if we are able to pick up something or we are able to get some point. Sure, we can do that. We can Then invite the guests. Yeah. Okay, let me do it this way then. I will have a orientation session for the Vedanta. Okay, so guests can come in and the old timers can get their questions answered. Parth, good job done. So you have given me a food for thought, right? Yes, so let me have a show of hands. How many new people are interested in Vedanta session? Then we will have that session. recap वाले तो आ ही जाएंगे, नीता जी हैं, और कितने लोग हैं? मेरे को तो वीडियो ही लोगों के नहीं दिख रहे हैं, तो how do I know whether you are interested or not? Okay, पायल जी is interested, नीता जी is interested, और कौन interested हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। Okay, never mind. So at least we have 2 people, so we will plan that very shortly. We will plan that. हाँ, एक बार नवरात्रि के ये खत्म हो जाए, then we can plan that session on a Saturday or so, because I have to check with Amit ji. Vedanta session मैं उनके healing center से conduct करता हूँ normally, so he has to be free, so I go there because that energy level is pretty good for the Vedanta session. Okay, coming back to the questions. So anybody else who has any question? हाँ पायल जी, आप हैंड रेस रोक सकते हैं। आई हैव सीन, सो यू आर इंटरेस्टेड, आई नो दैट, अनलेस यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। यस, who else wants to ask? Parth has raked up a good topic for discussion. किसी और के कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई क्लैरिटी? कवन, रेखा जी, वीडियो ऑन करिए आप लोग, आपके यहाँ तो 1 नहीं बजे। राइट, वीडियो ऑन करिए एंड देन बी पार्ट ऑफ द सेशन एंड आस्क क्वेश्चन, बिकॉज आज का ज्ञान पूरा हो चुका है। यस सर। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार सर। आप बहुत दिनों से मिसिंग हैं। हाँ, इस बार काफी टाइम हो गया। ओके, सो क्वेश्चंस। मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कृष्ण भगवान को अकर्ता, तो आपने उनको अकर्ता क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने तो सभी कर्म किए हैं अपने उससे है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में जो कॉन्शियसनेस है, सी इफ यू अंडरस्टैंड कृष्णा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इज द कृष्णा एज ए ह्यूमन बीइंग एंड वन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस बीइंग है, वो बीइंग डोमेन में चला गया, और कृष्णा अवतार में जब आए तो ह्यूमन बीइंग जो थे वो डूइंग में तो थे ना, कंस का वध किया ना, तो करता तो है, वो करता तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस में वो बीइंग नहीं थे, वो हमेशा अवतार ही थे। उनको मालूम था मैं कौन, हम भूल जाते हैं हम कौन, दिक्कत ये है। तो हमको अपनी बीइंग याद नहीं रहती, उनको बीइंग याद, जिनको अपनी बीइंग याद है वो अवतार हैं, या जो बीइंग में अपने स्थापित हैं वो अवतार हैं।
इसीलिए अमित जी हमारे प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में सारे अवतार हैं, राइट? Because we are aware of who we are being. At least we keep on reminding ourselves. I am Avatar Shashi, is Avatar Amit, Avatar Hiteshi. You know, we call ourselves like that. We want to remember and we want to remind ourselves we are Avatar, we are divine. तो हर बाहर तो नहीं बोल सकते, लोग कुछ भी करेंगे। छोटा सा एक जोक याद आ रहा है मुझे। तो देयर वाज अ ह्यूज बिग स्वामी, तो नो लाइक सेल्फ रियलाइज स्वामी, तो वो एक बार उनको लेके गए कि थोड़ा सा ज्ञान दीजिए जो मेंटल असाइलम में हैं थोड़े से, तो उनको थोड़ी सी एनर्जी हीलिंग वगैरह करने के लिए। तो वो वहाँ गए, तो अपने राउंड पे जा रहे थे, तो उनके एक दोस्त बन गए थे वहाँ पे, वीकली रूटीन था उनका। तो वो बोलते हैं उनसे कि सी, ऑफ कोर्स डायलॉग वाज इन इंग्लिश, सो वो जिस मर्जी लैंग्वेज में हो, तो वो बोल रहे हैं, सी आप बोलते हो कि मैं शिव हूँ, मैं शिवा हूँ, तो लोग आपकी पूजा करते हैं। मैं कहता हूँ मैं शिव हूँ, मेरे को बंद कर देते हैं, चेन में डाल देते हैं। तो व्हाई इज दिस? तो that Swami gave a very interesting answer. He says, when I say I am Shiva, I say I am as much Shiva as you are. Correct? Right. So we are all divine. I am Shiva, you are Shiva. मैं ये बोल रहा हूँ, शिवोहम शिवोहम। और तुम बोलते हो मैं शिव हूँ, मेरे पाँव धो, तो वो तो मारेंगे ही तुमको। मेरी पूजा करो, मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो, तब तो मार खाओगे ना, तब तो चेन में ही डालेंगे तुमको। So you have to understand, when we say we are divine, we are not saying that we are divine, so I am above you. No, we are as much divine as you are. Everybody is an avatar. Keep reminding yourself. That is what we mean, right? Okay. So you have to understand the situation in the right context. Otherwise, okay, you will only take the words and then you will be stuck. Right. So, okay, आपका again coming back to your question, Krishna consciousness में being में थे, right, अवतार थे, but जब वो लाइफ में एक्ट कर रहे थे तो उन्होंने पूरा जो भी खेल रचा, मायावी बोलते हैं ना उनको, सारी माया में, क्योंकि माया उनके कंट्रोल में थी। जो माया के कंट्रोल में है वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, जिसको माया को जो कंट्रोल कर ले वो अवतार है। राइट। ओके, गुड। हु एल्स? Anybody else with a question? You still have a lot of time, so you should be raking your mind. थोड़ा सा मंथन करिए, कोई सवाल, क्या सवाल है? एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में आप देखिए, जब आप लाइफ जी रहे हैं, कितनी बार आपको एहसास होता है पूरे दिन में कि आप अवतार की तरह काम कर रहे हैं, या बीइंग में आपकी डिविनिटी है। बॉस का गुस्सा होता है, डांटता है, आपकी बीइंग का क्या होता है? ओके, so let me ask you another question. एक तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, स्वाध्याय करिए। अदरवाइज हम ये बोल सकते हैं, जब आप डिवाइन नहीं है तो आप कौन है? आपका अनडिवाइन नेचर में क्या क्या आता है, बीइंग में क्या आता है? लुक एट दैट, देन यू कैन डिलीट दैट। समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा हूँ? अगर आप लव, इफ यू आर डिवाइन, देन यू विल एक्सपीरियंस ओनली लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, सतोगुण। ओनली सतोगुण विल कम। तो सतोगुण के अलावा कुछ आ रहा है तो आपके बीइंग में क्या आ रहा है? आपके बीइंग का फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो लुक इनटू दैट। बॉस डांट रहे हैं आपको, सिचुएशन देता हूँ, हाँ सब लोग, बॉस आपको डांट रहा है, बहुत फुल फ्लेजेड फायरिंग हो गई, टारगेट पूरे नहीं हुए, जो सेल्स में है, जिन्होंने एचआर में हैं, तो आप कुछ और सोच लीजिए कि आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें कि लाइक एम्प्लॉइज ने धरने पे बैठ गए हैं, सो यू कांट हैंडल दैट सिचुएशन, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, ओके? एंड पार्ट यू कैन थिंक ऑफ अ टफ सिचुएशन, somebody talk to you in a very rude way or something like that, okay? So now tell me, बीइंग में कौन है? आप बीइंग में कौन बन गए? कौन? थिंक ऑफ हिस्ट्री। हाँ, एंगर, एंग्री। तो you become being में कौन? You become an angry young man or you become an angry old man, and you will immediately see you will have some ideal for that. आपको कोई आइडियल उसमें होगा। अगर आप गुस्से में हो तो या तो आप if Sunny Deol is your ideal, then you will go and remove all the hand pumps there, right? Sunny Deol की तरह आप एक्टिंग करोगे, या फिर अमिताभ बच्चन हो तो एंग्री यंग मैन। कहीं ना कहीं से वो इमेजेस जो अंदर घुसे हुए हैं, जो अपने दिमाग में भरे हुए हैं, वो आपका बाहर निकलेगा। तो यू आर बीइंग एंग्री, दैट इज डिविनिटी चली गई बाहर। समझ गए? नाउ एंगर टेक्स ओवर यू एंड नाउ यू डू समथिंग एंड देन यू गेट अ रिजल्ट व्हिच इज अ क्लियर कट प्रोजेक्शन ऑफ एंगर, broken relationship or a broken teeth, whichever way, right?
रिजल्ट्स कैन बी इन दिस वे ओनली ना, जब एंगर दिखाओगे तो या सामने वाले के दांत तोड़ दोगे, मारोगे उसे तो, या वो मार देगा. Either way you will result with a broken teeth or a broken bone or a broken relationship or a broken friendship. So you can understand now, जब आप डिवाइन नहीं हो, being angry में ये रिजल्ट निकला, आया कि नहीं? How many of you can connect with your life? See in your life. I'm just throwing something at you, so catch it. Clear है? कोई मेजर रिजल्ट नहीं आया एंड यू आर अपसेट. आपने कोई एग्जाम दिया, फेल हो गए, याद करो बचपन में हुआ होगा, स्कूल में हुआ होगा, कॉलेज में हुआ होगा. यू आस्क समबडी फॉर some favor and he or she said no. You became what? What was the being? Share karo. Sad. Being sad. तो अब आप sad हो गए. Unhappy. Unhappy. Being unhappy. ठीक है ना? तो ये जब आप डिवाइन नहीं हो तो बीइंग में ये सब ऑटोमेटिकली घुस जाता. And you are even forgotten. You are divine, right? So there is no way that somebody has to come up and tell you. सारे हम लोग हनुमान जी हैं ना, हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था ना कि you are divine. So we are all like that. And unfortunately we are nobody to tell us that we are divine. दुनिया में कोई बोलता है आपको you are divine? No? Does somebody tell you that? No. क्या बोलते हैं? Stupid. अक्कल नहीं है तुमको, बेवकूफ हो तुम, गधे हो ना. These are the things that you hear, right? And you say, okay, right. Everybody is saying that I must be a gada only. The divinity goes out of the window and then you become smaller and smaller and smaller, right? Failure, being a failure, being rejected, ये मेरे favorite थे वैसे. These were the favorites of my lifetime. There was a time when I was living in a world of failures and rejection, and I used to blame the entire world for it. My boss was a Hitler. His only job was to come and start firing at me. So I would already come ready with my machine gun. चला गोली मैं भी चलाता हूँ. It was a battlefield in the office. And सब लोग बोलते थे आज हमारी मीटिंग होती थी उसमें, मंडे मॉर्निंग होती थी. मॉर्निंग से बाहर आते सब लोग बोलते थे मंडे को आज मार धाड़ होगी शुरू, मशीन गन है दोनों के हाथ में. गुड मॉर्निंग की सिर्फ होती थी, सिर्फ उसके बाद हमारी सिर्फ फायरिंग शुरू हो जाती थी. जब तक हमें से कोई एक ऑफिस के बाहर नहीं जाता था, इट वाज लाइक वॉर टाइम. So that is what I'm saying, right? So you can think of situations. कोई ना कोई लाइफ में ऐसे होगा जिसको आपने विलन माना हुआ है. Could be a boss, could be wife, could be husband, could be anybody, could be a neighbor, could be a business associate, could be anybody who is a villain in your life. You've declared him a villain. Think of him and your machine gun is out. इसको तो उड़ा ही दो, बाकी बाद में देखेंगे. So being angry, being sad, being failure, being rejected, these are the flavors of the being which are dominating your life. Find out कौन सा being है तुम्हारा. ये स्वाध्याय है. Right? First thing is to understand what is law of being. This is something which is happening with us. And if you don't pay attention, this is going to destroy our life. Now use this law of existence and law of being to create a magical life for yourself. Can we do that? Yes, we can. How? We will see that. But today, the only thing is, first step is to introspect. Law of being में, being, doing, having में, being में कौन है मेरे जो मेरे having में इतना बुरा हाल है. अगर being समझ में नहीं आ रहा है तो आप simply देख, कुछ situations में being clear हो जाएगा, कुछ situations में being clear नहीं होगा. तब आप पकड़िए having. रिजल्ट क्या है मेरी लाइफ में, मेरे हेल्थ में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे वेल्थ में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप्स में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. यही 3 एरिया है ना मेजर, राइट? हेल्थ, वेल्थ, करियर हो गया या स्टडीज हो गए, एंड रिलेशनशिप्स. की पीपल इन योर लाइफ. फाइंड आउट कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे ब्रेक डाउन है. द वर्ड दैट वी यूज इज ब्रेक डाउन. अगर हेल्थ में ब्रेक डाउन है, हु एम आई बीइंग, अब पता लगा. ब्रेक डाउन है तो बीइंग उसमें डिवाइन नहीं है, बीइंग में अनडिवाइन कुछ है. क्या है? लेजी. बीइंग लेजी. सुबह उठ के काम नहीं किया जाता है मेरे से, सुबह उठा ही नहीं जाता है मेरे से, मैं लेजी हूँ. मैं प्रोक्रेस्टिनेटर. मैं हर चीज को डिले करता रहता हूँ, पोस्टपोन करता रहता हूँ. तो बीइंग में मेरे अगर ये है, खाक रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे लाइफ में. बीइंग इनकॉम्पिटेंट. आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू हैव ए गुड बॉडी. आई कांट गो हैव ए लाइक बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ ए बॉडी. आई एम नॉट इनकॉम्पिटेंट. आई एम नॉट स्किलफुल. आई एम नॉट स्मार्ट. व्हाटएवर यू आर सेइंग, ये बीइंग में है. और ये एक लैंग्वेज के फॉर्म में होगा. I am stupid.
लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं वो नहीं, उसके बाद आपने क्या बोला अपने आप से, दैट गोज इनटू योर बीइंग। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, उसके बाद आप अपने आप से बात करते हो, दैट इज डिस्ट्रॉइंग यू। फाइंड आउट व्हाट आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ। स्वाध्याय क्लियर है ये पार्ट? So I've given you lot of thoughts to, lot of points to think over. Being में क्या है पहले ये पता लगाओ। अगर वो दिख गया being में क्या है तो उसके हटाने के तरीके हैं, बड़ा सिंपल है। तो सिर्फ देख लोगे उसे, वो हट जाएगा। हम देखते ही नहीं है being में, हम doing में लगे रहते हैं। ये नहीं हुआ, अब किसी से भी बात करो, कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो, क्या बोलेगा वो, अच्छा ये कर ले। अच्छा अब आप भी बोलते हो यार मैं फंस गया, अब क्या करूं? करूं कहाँ पूछ रहे हो आप, एडवाइस कहाँ मांग रहे हो? डूइंग में। वो क्या बताएगा? डूइंग। ये कर ले, अच्छा ये कर ले, ये कर लिया, अच्छा ये भी कर ले, मैंने ये किया था मेरे को फायदा हुआ था, ये कर ले। सब डूइंग के एडवाइसेस मिल रहे हैं और हैविंग के डिफरेंट रिजल्ट्स ढूंढ रहे हो। बीइंग चेंज ही नहीं हुई आपकी। यू आर बीइंग समबडी हु इज ए कंप्लेंट बॉक्स। कंप्लेंट बॉक्स सुना है आपने? कंप्लेंट बॉक्स, ओनली कंप्लेंट्स। उनके मुंह से राम राम नहीं निकलते, उनके मुंह से सिर्फ कंप्लेंट निकलते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। So if you are a complaint box, you do whatever you want to, your life will end up as a complaint only. कितने लोगों को अपनी लाइफ दिख रही है या अपने चाहने वालों की लाइफ दिख रही है इसमें? हाँ, कंप्लेंट, कंप्लेंट बॉक्स, ब्लेमिंग। You are a person who is blaming everybody else, right? कितने लोग ऐसे जानते हो आप लोग? बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, मिरर में देख लो, सब दिख जाएंगे, राइट? दिस इज द लॉ ऑफ बीइंग। तो कितने लोगों को क्लियर हुआ आज का डिस्कशन क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है? ठीक है, सबको दिख रहा है आपकी लाइफ आपकी बीइंग चलाती है, डूइंग नहीं चलाती है। क्लियर है? गुड। So let's have some more sharing. We still have some time. Let's have some sharing or let's have some questions. Tony, जिसने अभी तक नहीं बोला है, I want everybody to share something. Huh? So that at least I know you're taking away some value. मीता जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? You want to say something? Tony, you want to? Yes. No, I'm in the format of Swadhyay. Okay. So you are in the process of Swadhyaya. You're thinking, correct? Yes, because today's session is all about trying to find out whether we are being or whether we are doing. Okay. So the first thought, that first insight is that I am a human being, not a human doing. तो Yes, doing yes. करने से पहले being में घुसो पहले। Correct. तीन लाइन याद रखनी। वेरी गुड टोनी, दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट। इसी को पकड़ लो। आई थिंक अमित जी एंड रेणु जी आल्सो वांटेड टू शेयर समथिंग। तो कौन पहले बताएंगे? रेणु जी। ओके सर। हाँ जी। मैं जो कुछ दिन से ट्राई कर रही हूँ सर, वो ये है कि बीइंग के लिए कि मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ प्रेजेंट होने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे पहले होता था कि अगर ऑफिस में है तो फिर घर में दिमाग होता था, अच्छा घर में होते थे तो कहीं और होता था। आजकल काफी टाइम से मैं ऐसा है कि जब मैं अगर ऑफिस में हूँ तो मैं फिर ऑफिस में ही हूँ, अगर कोई फाइल पे मैं हूँ तो उसी पे ही हूँ। तो मैं आजकल अपने होने को सिद्ध कर रही हूँ। अगर मैं घर में बच्चों के साथ हूँ या मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करा रही हूँ तो सिर्फ मैं वही हूँ उनके लिए। तो इस वजह से जैसे आप बोलते थे कि माइंड डाइवर्ट करता है या जैसे आ जाता है तो उसको फिर बच्चे की तरह थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाए कि फिर करेंगे, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ सर। जब सुबह में घर 8 साढ़े 8 निकलती हूँ तब तक घर का होता है, फिर गाड़ी में बैठते ही समझ में आ जाता है कि ऑफिस की प्लानिंग क्या है, वहां अपना 100%। और मैं मान रही हूँ सर कि मैं बहुत बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। गुड जॉब रेणु जी, बहुत बढ़िया है। तो बीइंग में मुझे आज जो आप बता रहे हो उससे मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ। वेरी गुड। तो नाउ यू हैव टू सी पहले बीइंग क्या था। अगर आपको एक्चुअली में आगे बढ़ना है तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा पहले क्या बीइंग में था और अब क्या बीइंग में है। तो सोचिए, मेरे को तो पता लग गया, आपको ढूंढना है। तो ये ढूंढिए पहले क्या था जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा था और अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से हो रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा then it will help you to be there and not slip again. तब आप वहां से स्लिप नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर पता ही नहीं है आपको कौन सी चीज वहां रोक रही है तो आप स्लिप कर जाओगे, राइट? इफ यू नो देन इट्स देयर। लाइक इन आवर केस, जैसे अमित जी से मैं बोल रहा था, हम एस्टैब्लिश करके क्या रखते हैं, वी हैव ए स्ट्रक्चर वेयर वी टॉक टू ईच अदर एज अवतार। तो हमको तुरंत याद आ जाता है आई हैव टू बी डिवाइन, आई हैव बीइंग में मेरे को क्या चाहिए, डिविनिटी चाहिए, आई हैव टू बी डिवाइन, आई कैन नॉट बिहेव इन एनी अदर वे एक्सेप्ट द अवतार, सो पिक अप एन अवतार, राइट? पिक अप एन अवतार एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस। अगर मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो मैं आई विल थिंक ऑफ साई बाबा, साई बाबा की फोटो रखी हुई है मैंने, तो बीइंग में साई बाबा को लाता हूँ, फिर हीलिंग करना शुरू करता हूँ, तो डिविनिटी आ गई, राइट? Then if I'm doing a training, then I will think of a trainer, you know, maybe Shiv Khera, maybe, you know, whatever, Sandeep Maheshwari और विवेक बिंद्रा, whatever, किसी का एक दिमाग में ले आता हूँ मैं, और अपनी बीइंग को मैं एकदम हाई लेवल पे ले जाता हूँ, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है, देन वहां से मैं फिर ऑपरेट करता हूँ। तो बीइंग अगर हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो डूइंग में दिख जाएगा, और काफी सारे उनके डायलॉग भी याद आ जाते हैं, राइट? If I think of Shiv Khera, I remember the dialogues of Shiv Khera again. सदगुरु के बारे में सोचूं तो सदगुरु के सारे कोट्स मेरे को याद आ जाते हैं, तो वो निकलते हैं। तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डिविनिटी, आपके पास स्टॉक रखनी चाहिए, जिससे कि आपको डूइंग में ले आए, और डूइंग में लाएंगे, बीइंग अगर सही होगी, डिविनिटी में होगी, तो हैविंग डिवाइन ही आएंगी। तो यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग ए वेरी गुड प्रैक्टिस। उसको थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करिए। बिल्कुल सर, मैं सुबह आधा घंटा, करीब 6 महीने मुझे हो गए हैं, आधा पौना घंटा जो सुबह का होता है उसमें सिस्टर शिवानी हो गया, या ये जो सारे दिन फिर आपके दिमाग में सिचुएशन के हिसाब से क्लिक होते हैं। दूसरा सर, जो अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे कोरोना का टाइम चला, जिसमें लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है कि आदमी पॉपअप की तरह, जैसे सदगुरु बोलते हैं कि आते हैं और आप 1 सेकंड है, 1 सेकंड नहीं है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि अगर मैं रात को सोऊं, सुबह ना उठूं, तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ अभी मेरे वर्क प्लेस पे, मेरे बच्चों की लाइफ में, कि मतलब मैं अपाहिज होके नहीं जाना चाह रही। अब जैसे सुबह उठे, शाम हो गई, और सुबह उठे, सो गए रात को, फिर सुबह चल दिया। अब ऐसे नहीं है सर, 24 घंटे का मतलब ये है कि बिल्कुल वो पूरे तरीके से निचोड़ लेने वाली बात है। तो अब उससे सेटिस्फेक्शन वाला जो लेवल अपना सेल्फ कंटेनमेंट वाला है सर, वो बहुत बहुत हाई लेवल पे है। तो वो ये पुश कर रहा है कि मतलब आज का एक दिन और बढ़िया, तो एक दिन उससे और अच्छा, बच्चों के से भी सीखने को, जिससे जो मिल जाए, जो अच्छा सिखा सकते हैं, सबसे सीखने का है। क्योंकि टाइम ऐसा लगता है कि अब सर ऐसे टिक 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 चल रहा है, कब किसका नंबर है ना, वो नहीं पता चल रहा है। तो अब तो थोड़ा स्टेबल है, जो टाइम पहले गया अप्रैल में उसमें खोया है हमने सबने, उसके हिसाब से अब अच्छा है। तो वही परफेक्ट जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शेयरिंग, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल वे ऑफ लिविंग बाय द वे। अगर आप रोज सुबह उठो और धन्यवाद करो कि वो वाओ, आई गॉट अ न्यू डे टुडे, और रात को सोते हुए सबको बाय बाय करके जाओ कि अगर मैं नहीं उठा तो एवरीथिंग इज फाइन, यू नो। तो वी स्लीप लाइक टुडे इज द लास्ट डे एंड गेट अप लाइक टुडे इज अनदर डे गिवन, दैट्स इट। तो ग्रेटिट्यूड में रहोगे हमेशा, और कोई भी बड़े अचीवमेंट के लिए आप परेशान भी नहीं हो। इफ यू गेट एन एक्स्ट्रा डे, ग्रेट, एक एक्स्ट्रा डे मिल गया, अगले 24 घंटे में कुछ नया क्रिएट करते हैं आज। तो यू गेट अप इन द मॉर्निंग लाइक दैट, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू से कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आई यूज्ड टू से दैट, कि आज उठ गया हूं मैं, आज मेरे आने वाले दिन के, आने वाले जिंदगी का आज पहला दिन है, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। तो मैं रात को बोलता था, इफ टुडे इज द लास्ट डे, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। इफ आई डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग, आई एम डन, great life, thank you very much. So like that, so that gives you a very powerful platform to start your day and end your day with gratitude, right? Palji, I'll just come to you. Amit ji, you wanted to share something? एक शेयरिंग है, एक सवाल है। शेयरिंग तो ये कि जो आधा घंटे पहले जो आप बात कर रहे थे, बहुत ही इम्प्रेसिव था वो, जब आपने कहा कि नॉन मैनिफेस्टेड एनर्जी एंड देन गेटिंग मैनिफेस्टेड इन यूनिवर्स। मैंने इस तरह से कभी खुद नहीं सोचा था, बहुत वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आई गॉट अनदर पर्सपेक्टिव टू लुक एट, सो वेरी पावरफुल। दूसरी चीज, कमिंग बैक टू द वेरी एजेंडा, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके अलावा एम आई राइट इन सेइंग कि देयर आर इनफाइनाइट लॉज ऑफ यूनिवर्स? Infinite की जरूरत नहीं है, but yes, there are some laws if you follow which will bring your life into great rhythm, because infinite तो नहीं होंगे,
finite laws ही हैं, laws तो finite ही हैं, you can count them, but they are all interrelated. That way you can have as many laws as you want. Right? Correct. Yeah. So for example, fusion of two laws, दो अलग laws के कुछ एक उससे एक नया थर्ड लॉ बन गया. तो मेरा सवाल ये है कि हम जैसे अभी हम लॉ ऑफ यूनिवर्स की तो बात कर ही रहे हैं, सॉरी एग्जिस्टेंस की, इसके अलावा और भी हैं जो आपके माइंड में जो शायद आने वाले कुछ सेशंस में कवर करें? Obviously, every week we have a different session, a different law. Just give me a couple of names if you can. Law of एक तो law of order है जो संजीव ने एक वीडियो भी निकाला था, law of order, right? Then you have law of karma, law of dharma, law of giving. ऐसे बहुत सारे हैं, आएंगे धीरे धीरे सब आएंगे. ठीक है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है इनफाइनाइट है, बट और ये हमने क्यों चुना आज लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, लॉ ऑफ बीइंग, आई थिंक ये मोस्ट पावरफुल है शायद. ये बिगिनिंग है ना, ये बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन है. अब अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करेंगे, सारे लॉस उस पे हैं. ठीक, दैट्स प्रीटी मच. अब बीइंग वाला लेवल छूट गया, अब डूइंग और हैविंग में सारे लॉस आएंगे. बीइंग वाला एक ही लॉ है, लॉ ऑफ बीइंग, राइट. अब इसको अगली बार जब टाइम हो गया है, सो आई विल नॉट ऐड मोर इन इट. सो नेक्स्ट टाइम वी विल हैव मोर एप्लीकेशंस ऑफ दिस. सिर्फ थ्योरी से काम नहीं होगा. तो ये बोल के अगर मैं छोड़ दूं और अगले हफ्ते एक और लॉ पकड़ लूं तो वो मजा नहीं आएगा. Now we are going to see how we can apply this in our life and how you can change the being that you have been living your life with, which have resulted in, you can say, upsets and disturbances in your life. तो वो क्या being थी आपकी जिसकी वजह से लाइफ नहीं चल रही थी, और इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, कौन सी साधना के प्रैक्टिस हैं, कौन सा ऐसा योग का मार्ग है, क्योंकि जो हमने अभी सीखा है उसे कनेक्ट भी करना है ना हमको, कि कौन सी साधना में कौन से योग मार्ग पे चल के हम इस बीइंग को शिफ्ट कर सकते हैं. तो ये हम अगले हफ्ते के प्रोग्राम में देखेंगे. तो वी विल हैव अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इन द नेक्स्ट वीक. तो ईच लॉ वी विल डू फॉर 2 weeks एंड देन इन द सब्सिक्वेंट थर्ड वीक वी विल पिक अप अनदर लॉ. क्लियर है ये? एंड वी विल आल्सो हैव सम मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लॉ जब मैं अगले हफ्ते इसको बताऊंगा. I have a small question. राइट. यस Gaurav, go ahead. Yeah. To identify whether we are doing right or not, that means we are being right or not. So we are being, I would say right. Okay, let's take it right or wrong. It's only dependent on having. Like once we see the having, then only we'll be able to identify. हाँ, क्योंकि अगर आपको एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले तो ये देखोगे ना कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं. मेरा एक रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मेरा एक हेल्थ का रिजल्ट मेरा खराब हो रहा है, राइट, या मेरी हेल्थ बीमारी आ गई है मेरे को, या मेरा एक बॉस के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है, या मेरे को वेल्थ में, करियर में मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को कहाँ जाना है. तो ऑब्वियसली समथिंग इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ. देन यू हैव टू सी, अगर ये मेरा रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मेरी कौन सी बीइंग है जो वायरस है. बीइंग में डिविनिटी नहीं है, मतलब एक वायरस घुस गया अंदर. वो वायरस क्या है, मेरे को वो डिबग करना है. जैसे ही वो हटा दूंगा और डिविनिटी ले आऊंगा वहां पे, वो हम देखेंगे कैसे कल करना है. बट आइडिया इज अनडिवाइन चीज को हटानी है वहां से, जो गंद आ गया, वायरस आ गया, और वहां पे डिवाइन मूर्ति को स्थापित करना है. तो डिविनिटी स्थापित हो जाएगी ऑटोमेटिकली. बीइंग क्लियर हो गया अब आपका. अब डूइंग में जो भी आप करोगे दैट विल बी विद पावर. एन अवतार इज डूइंग इट. And when an avatar is doing it, obviously he will get a result which is divine. तो आपके वहाँ लाइफ में ब्रेक थ्रू रिजल्ट आ जाए. अब उसके लिए क्या साधना मार्ग है, क्या योग मार्ग है, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते. प्रैक्टिकली उस पर कैसे हमको अचीव करना. अभी थ्योरेटिकली बता दिया कि ये है प्रॉब्लम. अब इसको अचीव कैसे करेंगे, इस पे हम अगली बार थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. राइट. And we can have more than 2 weeks also. अभी तो मैं सिर्फ एक thumb rule बताया कि one law we will take for two weeks. We can take that for a third week also if it is important. Because this is the fundamental. ये सबसे ज्यादा important है. बाकी चीजें तो इसके बाद समझ में आ जाती हैं जल्दी, क्योंकि being वाला level समझ में नहीं आता. So if you want, we can have a discussion even in the next 2 weeks for this, right? But we will get it. Not to worry. So Gaurav, did I satisfy your curiosity? Yeah. Actually, the question which I have was actually supposed to be there in the next session. मैं वही पूछना चाह रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है, how to identify, how to analyze. We know the problem is like, but how to. पहले प्रॉब्लम एरिया देखना है, वहां से हैविंग से हम बीइंग में जाएंगे और फिर बीइंग को चेंज करेंगे और फिर वहां से नया हैविंग क्रिएट करेंगे. That is the process, right?
रॉन्ग हैविंग से रॉन्ग बीइंग तक जाएंगे, बीइंग को करेक्ट करेंगे, फिर करेक्ट बीइंग से करेक्ट हैविंग में आएंगे, बिकॉज दैट इज द राइट फ्लो. Right. See, the problem with people is that they are thinking कि अगर मेरे को हैविंग में रिजल्ट आ जाएंगे तो मैं बीइंग में हैप्पी हो जाऊंगा. यू नो, लाइक अगर मेरे को जॉब मिल गई तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा. दैट मीन्स रिजल्ट में जॉब चाहिए तो बीइंग में मेरे हैप्पीनेस आ जाएगी. उल्टा जाने की कोशिश कर रहे हैं. रिवर डजंट फ्लो द अदर वे. You be happy first and then you will get the job, then you will get a good result. I mean, ठीक है ना. तो बीइंग को पहले ठीक करना. It's simply like saying, अभी हम बाद में आगे बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी हम इससे थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं जब हम बात करेंगे. See, if you're a happiness magnet, then you will attract happiness. Correct? तो यानी कि अगर आपको खुशखबरी चाहिए तो आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हैप्पीनेस मैग्नेट ही आपको हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेगा. अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो आप मातम वाली खबरें ही अट्रैक्ट करोगे. The sad magnet will only attract sad events in life, right? तो लोग, परिस्थिति, बाहर की दुनिया जो मैं बोलता हूँ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये वैसे ही मिलेगी आपको जैसे आप हो. अगर आप हैप्पी हो तो ये हैप्पी सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे. दुखी हो तो दुख भरे सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे. This is law of attraction, but it is coming from law of being actually. क्योंकि बीइंग में अगर हैप्पीनेस है तभी हैप्पी रिजल्ट आएंगे. बीइंग में सैडनेस है तो सैड रिजल्ट आएंगे. क्या? Yeah. Okay, good. So that's a query from Gaurav. And Payal ji, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Oh, she has moved out. Okay, शायद वो बाय कह रही होगी. हाँ, 2 बज गए होंगे. Okay, anybody else who wants to share something? Anybody else? We are already over by 7 minutes, so I will not take much time. Right? Anybody has any questions? Last one person. किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? Okay, टोनी स्वाध्याय मोड में है. रेखा जी वीडियो ऑफ मोड में है. Okay, so with this we come to the end of the session. I hope आ गए. Okay, so with this we come to the end of the session. I hope this session was valuable to all of you. And we will continue the discussion in the next week. Same topic, law of existence and law of being. So with this, I thank you very much. Enjoy a great day, enjoy a great week, and we meet again next week. Thank you very much. Enjoy a great day. Bye. Thank you. Thank you. Sir, thank you.